Dear people of God and the servant of God, those who are working in North India, we greet you in the name of Lord Jesus Christ. मेरा प्रिय उत्तर भारत होली न्यू जेरूसलम ब्राइट चर्च पासवान, आपको सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से स्वागत व शुभेच्छा आपको सबको। Today we meditate about book of Revelation, chapter 14, verse 14. आज हम लोग हमारा जीवन तो प्रभु का वचन से हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 14। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजाला उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। यस सर। I looked, and there before me was a white cloud, and seated on the cloud was one like a son of man, with a crown of gold on his head, and a sword sickle in his hand. So here, this vision of Apostle John is the sixth vision in this chapter. यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जॉन का एक दर्शन है। वो एक सुवर्ण मुकुट उसका ऊपर है। So this verse 14 to 16 is one vision, that is the sixth vision of Apostle John in this chapter. यहाँ पर वचन प्रकाशित वाक्य 14 का 14 से 16 तक वो परमेश्वर का दास जॉन का एक स्पेशल दर्शन है। Likewise, verse 17 to 20 is another vision, seventh vision of Apostle John in this chapter. 14 से 16 तक 60 वो 6 दर्शन है। वो 7 दर्शन 17 से लेकर 20 तक वो दर्शन है। 7 दर्शन है। These two visions are interrelated one. ये दोनों एक दर्शन है, एक हमारा एक रिलेशनशिप मीन्स हमारा एक संयुक्त एक है। But many of the Bible scholars are describing about this vision, these sixth and seventh vision, from verse to 20 says about the same revelation. तो बाइबल स्कॉलर लोग जो बाइबल ट्रेनिंग लेता है वो लोग यहाँ पर एक 7th दर्शन 7 दर्शन ऐसा है, वो 17 से लेकर 20 तक एक महान दर्शन है। But we can understand these two visions are different one. In spirit we can understand. तो ये दोनों दर्शन परमेश्वर वो उसका दास जॉन को जो दिया है वो एक पर्सनल एक स्पेशल दर्शन है, जैसे वो एक बहुत बड़ा दर्शन है यहाँ पर है। Yeah, let us read 14 to 20. तो आइए हम लोग 14 से लेकर 20 तक हम पढ़ सकते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
अपना हसुआ लगाकर लबानी कर, क्योंकि लबाने का समय आ पहुंचा है, इसीलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लबानी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला, जो स्वर्ग में से, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत, जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था। उसके ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब एक और स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यस सर। Yes. So the verse 15 says, Then another angel came out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the cloud, Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe. So he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Verse 17. Another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. Still another angel who had charge of fire came from the altar and called in a loud voice to him who had the sharp sickle, Take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's vine, because its grapes are ripe. The angel swung his sickle on the earth, gathered its grapes, and threw them into the great winepress of God's wrath. They were trampled in the winepress outside the city, and blood flowed out of the press, rising as high as the horse bridles for a distance of 1,600 stadia. So, if we see in the overcome view of these two visions, we may say these two are insist the same incident. तो आइए हम लोग को ये दोनों दर्शन जो प्रभु का दास जोहन को जो दिया है, एक 60 दर्शन, वो 6 दर्शन 14 से 16 तक, और सप्तम दर्शन 17 से लेकर 20 तक, ये बहुत बड़ा दर्शन है। But the verse 14 and 15 says about the reap of wheat that has to be gathered into the barn. आइए हम लोग 14 और 15 वर्ष देखेंगे तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा शस्य है, लेकिन वहाँ पे काटने के लिए बहुत लोग कम हैं। तो अभी ये हमारा समय है वो काटने के लिए। But the seventh vision says about the sinners, those who are going to judge by God. ये सप्तम दर्शन ऐसा है, जो लोग पाप क्या है, पाप के लिए जो मरता है उसके लिए विचार होने वाला है। So we can understand the sixth vision describe about the saints, how they will gather in the secret coming. तो 6 दर्शन ऐसा है, जो लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, वो परमेश्वर का गुप्त आगमन का समय में उसका दर्शन है। The seventh version describe about the judgment for the sinners in the judgment day. और सप्तम दर्शन ऐसा है, जो पाप क्या है, पाप के लिए विचार तो होने जरूरी है।
So we can differentiate these things with according to the Bible verses. Matthew verse 3, chapter 3, verse 12. Please read Matthew 3:12. आइए मत्ती लिखित सुसमाचार 3 का 1 हम लोग पढ़ सकते हैं। 12 3:12, yes. 3 का 1। 3 का 12 उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यस सर। So Matthew 3:12 says about the judgment for the saints and the sinners. ये मत्ती लिखित सुसमाचार 3 का 1 में ऐसा लिखा है, तो जितना लोग पाप किया है उस लोग को विचारित होने का जरूर है। So his winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. So here two things. Number one, gather the wheat into the barn, describe about the sixth vision, which is in Revelation 14 to 16. तो ये 6 दर्शन ऐसा है जो परमेश्वर को गुप्त समय का आने वाला है। उस समय को परमेश्वर का साथ जितना लोग है उस लोग को परमेश्वर का साथ मिलना जरूरी है। So second part of this Matthew 3:12 about burning up the chaff with unquenchable fire, describe about the judgment of sinners, is written in Revelation 14:17 to 20, that seventh vision. ये सप्तम दर्शन ऐसा है, मत्ती लिखित सुसमाचार 3 अध्याय का 12 में ऐसा है, वो जितना लोग पाप किया है उस लोग के लिए वो विचारित तो जरूरी है। Yeah, let us read Matthew chapter 13 verse 30, 13 and verse. आइए हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 13 अध्याय का 30 में हम लोग पढ़ सकते हैं। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। So in this parable, our Lord Jesus Christ says, let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weed and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring them into my barn. So here, two things are happening. First one, the wheat that saints must be gathered into his wedding of the Lamb. Second one, the weed, which is the sinners, will be burned by the unquenchable fire. तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जितना वो शस्य है और पाप क्या है लोगों, वो पाप नहीं किया लोगों, वो लोगों दोनों को ऐसे एकाठ रहना है, एक रहना है। तो एक दिन आएगा वो जितना पाप किया है उस लोग को विचारित हो जाएगा और नरक में उसको लोग को जला दे जाएगा। So the gathering of the saints is written in another place also, Matthew chapter 24:31. आइए हम लोग
माती लुक सुसमाचार 24 अध्याय का 24 का 34 में 31 Yeah, 24, 31. वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। Yeah, 31 says, and he will send his angel with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end to the heavens to the other. So here also describe about the vision, Revelation 14 to 17, because the sickle was in his hand. He only ordered the angels to reap the wheat and collect them into the burn. तो यहाँ पर माती लुक सुसमाचार 24 अध्याय का 31 में ऐसा लिखा है, जितना लोग परमेश्वर का साथ रहता है वो एक सीमा से अन्य सीमा से उस लोग को परमेश्वर मनोनीत क्या है और एक जगह में उसको संग्रहित करे जाएगा। So here the Revelation 14:14 says that Son of Man is a Jesus Christ. वो प्रकाश वाक्य 14 का 14 में ऐसा लिखा है, मनुष्य पुत्र का एक उपविष्ट है, वो उसका ऊपर एक सुवर्ण मुकुट है। In his hand he has a sharp sickle. उसका ऊपर मस्तक ऊपर एक सुवर्ण मुकुट है। In Matthew 3:12 says, we read already, in his hand he has the winnowing fork. So that fork will use to clear the wheat, and it is used to gather the wheat into his burn. तो हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 3 का 12 में ऑलरेडी हम पढ़ चुका है। तो वहां पे परमेश्वर का हाथ में खोला है, वो पूरा हमको जितना लोग अच्छा है और कितना लोग अच्छा नहीं है, उस लोग के लिए, जितना लोग पाप क्या है उस लोग के लिए वो बहुत बड़ा अग्नि में उस लोग को विचारित का बात में उसको जला जाएगा। But the seventh vision in this chapter is described about the judgment of God against the sinners. तो सप्तम दर्शन ऐसा है परमेश्वर का, वो जितना लोग पाप किया है उस लोग को विचारित करा जाएगा और विचारित बात में परमेश्वर उसको अग्नि में वो जला दे जाएगा। Because here what happened in this vision, the verse 19 says, the angel swung his sickle on the earth, gathered its grapes, and throw them into the great winepress of God's wrath. So that is that winepress describe about the God's wrath. तो परमेश्वर का वचन 14 का 19 में ऐसा बोलता है, परमेश्वर का क्रोध कैसा है, क्रोधों का बारे में वो बहुत क्रोधा है, उसका बारे में ये 19 का वचन क्या बोलता है। In the sixth vision, that angel and the Son of God is very happily reaping the earth with his sickle and gather into the burn. तो से दर्शन ऐसा है, परमेश्वर का गुप्त समय में जितना लोग परमेश्वर का ऊपर निर्भर है उस लोग परमेश्वर का साथ मुलाकात करेगा, लेकिन सप्तम दर्शन ऐसा नहीं है।
But in the seventh vision is totally different. लेकिन सप्तम दर्शन पूरा बहुत बार भिन्न है, वो पूरा भिन्न है। He has a sharp sickle and cut the weed or cut the sinners. It describes as grapes. Okay. And throw them into the winepress of God's wrath. तो जितने लोग सप्तम दर्शन में हैं, उस लोग को परमेश्वर का क्रोध से विचारित हो जाएगा और पश्चात बाद में परमेश्वर का डिसीजन लेना है। How the wine is spread over from the wine press, it is described in verse 20 says, it flowed out of the press, let me read again. They were trampled in the winepress outside the city, and blood flowed out of the press. So it seems like blood. The wine become like blood. That is the God's wrath upon the judgment of God against the sinners. तो 14 का 20 में ऐसा लिखा है, वो नगर का बाहर में द्राक्षा कुंड है, उसमें परमेश्वर का जितना लोग विश्वास नहीं किया है, वो सप्तम दर्शन है, उस लोग के लिए परमेश्वर का क्रोध ऐसा है, उसका खून बाहर आता है। So this grape is equivalent to weed among the wheat. यहाँ पर वो लिखा है, उसका द्राक्षा कुंड ऐसा होता है, वो परमेश्वर का क्रोध पूरा बाहर, खून से बाहर आता है। So Matthew's, we can see about the judgment of sinners also in Matthew 25, verse 31 to 34, we can read. आइए मत्ती लिखित सुसमाचार 25 अध्याय का 25, 31 to 34. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। So Matthew 25, verse 31 to 34 says about the judgment of God. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will gather before him, and he will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep in his right and the goats on his left. Then the king will say to those who his right, come, you who are the blessed of my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So here the verse vision 6th describe about this right hand part, that people, those who are considered as a sheep. तो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, वो जो 6 दर्शन ऐसा आता है, तो परमेश्वर का वो मेषपालक लोग एकत्र होने वाला है। Likewise, the left hand side of the Son of Man, तो that is considered as a goat, they are the sinners
they will be put into lake of fire. तो परमेश्वर उस समय में डहान डहान का हाथ का समय में डहान हाथ में परमेश्वर है, वो बां हाथ का जो पापी लोग है उस लोग के लिए विचारित होने का बाद उसको एक ज्वलंत अग्नि में है। This incident only written in Revelation chapter 20, verse 11 to 15. What sir? This incident only written in Revelation 20, verse 11 to 15. आइए हम प्रकाश वाक्य 20 का 11 से 15 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रकाश वाक्य 20 का फिर 11 मैंने एक 11 बड़ा से श्वेत 15 तक। सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। So the judgment of God is written here. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose names was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So this incident describes about the seventh vision of Apostle John, which is written in Revelation 14, verse 17 to 20. वो जो सप्तम दर्शन परमेश्वर का ऐसा है जो प्रकाश वाक्य 20 का 11 से लेकर तक 15 से। So this is called open coming or overcoming of Jesus Christ. ये ऐसा को बोलता है परमेश्वर का ओवरकम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर ऊपर आने वाला है। Because these two visions will happen in different time for different peoples. यहाँ का दोनों लोग को परमेश्वर का वचन बोलता है, एक लोग का एक लोग का अलग है और दूसरा लोग का अलग है। The sixth vision in this chapter, it will happen in the end of the rule of Antichrist. तो 6 दर्शन ऐसा है परमेश्वर का गुप्त समय में जो भंड ख्रिस्ट जो रूल करता है, शासन करता है, उसका अंतिम समय में वो 6 दर्शन आता है।
In this vision will accompany the saints will gather and meet the Jesus Christ in the wedding day. तो उस समय में जितना लोग पाप किया है, पापी लोग एक स्थान में, एक जगह में वो एकत्र हो जाएंगे और परमेश्वर का साथ मुलाकात करेंगे। Here the Jesus Christ will come as a bridegroom to gather the bride and rule the world for 1,000 years. तो उस समय में परमेश्वर वो बर कन्या जैसे आने वाला है। उस समय में 1000 परमेश्वर ये पृथ्वी को शासन करने वाला है। But the seventh vision, which is written in the chapter 14, describe about the open coming of Jesus Christ that will happen in the end of the millennial reign of Jesus Christ. तो सप्तम दर्शन ऐसा है, परमेश्वर का द्वितीय आगमन जैसे पूरा खुलाम खुलाम आता है, उस समय में 1000 वर्ष वो शासन करने वाला है। That is called Judgment Day or God's Wrath Day. तो उसको परमेश्वर का क्रोधी और परमेश्वर का विचारित का समय उसको बोल जाएगा। Because the God will come as a judge to judge the world. तो परमेश्वर आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है, वो पृथ्वी को वो विचारित करने वाला है। Let us read Revelation chapter 19 verse 15. आइए प्रकाशित वाक्य का हम लोग 19 अध्याय का 15 हम लोग पढ़ सकते हैं। जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। आमीन। So here the word says, coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. So the sharp sickle we read in sixth vision, this will used for two things. The first sickle is used to gather the saints in his secret coming. तो ऐसा प्रकाशित वाक्य 19 का 15 ऐसा लिखता है, वहां का परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोधी है। उस समय में जितना लोग पाप किया है, उस लोग एक जगह में एकत्र होने वाला है। Even though the seventh vision of Apostle John in the chapter 14, verse 17 says also, the angel has a sharp sickle. तो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर ऐसा क्रोधी, महान प्रचंड क्रोधी द्रक्षालता होता है। उस प्रकाशित वाक्य 14 का 17 में ऐसा प्रकट होता है। So here the verse 19 says, the angel swung his sickle on the earth, gather its grapes and throw them into the winepress of God's wrath. तो परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, जो लोग पाप किया है, पापी लोग एकत्र होता है, उस लोग को विचारित हो जाएगा और ऐसा बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रचंड द्रक्षालत वो क्रोधो सृष्टि होने वाला है। Here Revelation 19:15 also says the same thing. He threads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty.
तो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 19 का 15 ऐसा बोलता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परमेश्वर का प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षालो तो वो सृष्टि होने वाला है। So here the seventh vision says the grapes are trampled in the city and the blood will float out of the press. तो सप्तम दर्शन ऐसा बोलता है, वो नगर से परमेश्वर जाने वाला है, वो नगर पतन होने वाला है। So we can clearly understand about the judgment day, that is the open coming, and the secret coming of Jesus Christ, about the wedding day. तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन से मालूम होता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वो गुप्त परमेश्वर गुप्त आने वाला समय में कैसे होता है। वो परमेश्वर वो पूरा द्वितीय आगमन सबको लोग सामना में, वो द्वितीय आगमन आने वाला समय में कैसे होता है। Now we clearly understand about the two visions in this passage. तो हम लोग पूरा मालूम होना चाहते हैं, ये 6 दर्शन और सप्तम दर्शन वो परमेश्वर का दास जोहन को जो देखा है वो कैसा होने वाला है। So here the Revelation 14:14 says about that before me was a white cloud. इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 14 से 14 ऐसा बोलता है, वो मनुष्य पुत्र सदृश जन उपविष्ट है, वो मेघमाला से वो आने वाला है, उसका ऊपर एक सुवर्ण मुकुट है। So what is the white cloud mentioned here? यहाँ पर एक शुभ्र वन खंडे मेघ क्या लिखा है। This white cloud, whenever which is written in the Bible, it describes about the glory of the God. क्योंकि ना यहाँ पर परमेश्वर का महिमा होने वाला है। And one more thing, the Son of Man, he is the Jesus Christ. और एक ऐसा बहुत बड़ा वाक्य ऐसा वचन होता है, वो मनुष्य पुत्र कौन है, मनुष्य पुत्र यीशु मसीह है। Because he wear the crown of gold on his head. क्योंकि ना उसका मथा ऊपर में एक सुवर्ण मुकुट उसका ऊपर दिया है। This crown of gold describe about the king's authority. क्योंकि ना यहाँ पर सुवर्ण मुकुट ऐसा दिया है, वो सुवर्ण मुकुट का संकेत ऐसा है, वो परमेश्वर हमारा मसीह राजा मानव का राजा है। So in the book of in the books in Bible, wherever the crown is mentioned about the glory for the king. परमेश्वर का वचन, वो वचन परमेश्वर का जीवंत ईश्वर का वाक्य ऐसा है, वो जो बाइबल में लिखा है वो सुवर्ण मुकुट ऐसा लिखा है, जहां पर लिखा है वो परमेश्वर वो राजाओं का राजा है। So this Revelation 14:14 says about clearly about the Jesus Christ. तो परमेश्वर का वचन प्रकाश तो 14वां अध्याय का 14 में लिखा है, ये पूरा परमेश्वर यीशु मसीह है। He wear the crown for the kings and cover with the glory of God. क्योंकि ना वो सुवर्ण मुकुट और राजाओं का राजा, ये सब कुछ परमेश्वर का द्वितीय आगमन आने वाला है, समय का है। And in his hand he has a sharp sickle to reap the world about the wheat should be gathered into the burn. क्योंकि ना ये परमेश्वर ये सबको पृथ्वी को एकत्र करने वाला वो पाप लोग और धार्मिक लोग का
के लिए क्या विचारित हो जाएगा, किसको नरक में जाने वाला है। So we clearly understand the Revelation 14:14 says about the Son of Man, Jesus Christ, will come and gather the saints in the last day. तो हम लोग पूरा मालूम होना चाहिए, प्रकाशित वाक्य 14 में यहाँ पर सुवर्ण मुकुट और राजाओं का राजा मनुष्य पुत्र यीशु मसीह है, वो जल्दी आने वाला है। So we have to be participate on that sixth vision. That is our vision. So we must prepare for that. May God bless all of us. Amen. तो हम लोग ये 14 में मालूम होना चाहिए, ये 6 दर्शन परमेश्वर का इसके लिए क्या है और किस लोग के लिए उसका मालूम होना हम लोग को मालूम हुआ है। ये परमेश्वर का वाक्य से, वचन से सबको आशीष होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।